हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वैद भाई का ज्ञान। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं BVSC एंड AH 2021 वेटनरी मेडिसिन पेपर 1। ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टार्टिंग विद द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज कफिंग इज कॉमन फाइंडिंग इन। तो इसका आंसर है लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट ascites is a common finding in right congestive heart failure. So this question can also be asked. Then partial absence of appetite is termed as inappetite, whereas complete absence of appetite is anorexia. Then next question, expectorants are used to remove mucus, or you can say phlegm from airways. So इसका आंसर क्या होगा? mucus. Papal shaped abdomen is observed in vagal indigestion. तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है. डैश टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन में रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव स्वेटिंग. तो इसका आंसर होगा आइसोटोनिक. देन नेक्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन is called. Basically in diabetes insipidus, this condition is seen where the kidney is unable to concentrate the urine, but this question is slight doubtful, we will inform you if we get the right answer. Then ketosis of heavily fed high producing cow is known as well fed acetonemia. Then kangaroo sitting posture is observed in. So again this question is in it is doubtful, so we will inform you later. Then capture myopathy is also known as exertional myopathy. The next question, anamnesis is history taking. Accident with a running vehicle may cause neurogenic shock. A wholly abdominal respiration occurs in cases of pulmonary edema or congestion. Then in rumen overload, the gram negative bacteria dash the gram positive bacteria. So ये याद रखना कि rumen overload में gram negative bacteria कम हो जाते हैं, so they are less than gram positive ones. Fipronil and S-methoprene are used to kill adult and larval fleas in dogs. ओके, सो बेसिकली फ्लीज और उनके एग्स को किल करने के लिए ये दोनों ड्रग्स यूज़ की जाती है. इन कोबाल्ट डेफिशिएंसी देयर इज डैश एनीमिया. सो अकॉर्डिंग टू अमलेंदु बुक इट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. ओके, सो you don't go through what is written here. So the answer is normochromic, normocytic, normochromic. The next specific clinical manifestation related to a disease is known as syndrome. The next, if there is fall in PCV to less than 14%, transfusion of blood is indicated. Okay, so here you can write 14%. Okay, then next question, liver specific enzyme in dogs is ALT. Okay, so this is also a very much asked question. So ALT also known as SGPT. Okay, then next question, the electrocardiogram shows increased PR interval in first degree atrioventricular block. Okay, then CPCR in emergency medicine stands for, so इसका full form लिखना है आपको, cardiopulmonary cerebral resuscitation. Then coming to the MCQs. So here question number 1, which is considered as an important contributing factor in left-sided displacement of abomasum? So it is hypocalcemia. Then inability to swallow and no pain are the symptoms of pharyngeal paralysis. Then treatment of sand colic includes xylem. Okay, so just remember the name of the drug. Then lymphedema of all four limbs in dogs should be differentially diagnosed with. So here fourth option is correct, acute heart failure, hypoproteinemia. Then which is not the cause of nervous sign in hepatic diseases? So here the third option is correct, accumulation of ammonia.
Then alopecia in canine hypothyroidism is usually bilateral symmetric. Head tilt ataxia and intentional tremors in an animal suggest lesions in this part of the brain. So here the answer is cerebellum. Ovine white liver disease is caused by deficiency of cobalt. Sulcovich test in urine is performed to detect calcium. Okay. Then next, hepatosis diatheca is caused by the deficiency of, first option is correct, vitamin E and selenium. It is seen in pig. Nebulization is performed in respiratory emergencies. Which of the following preventive method is best suited for feedlot bloat, or also known as frothy bloat? So this is use of sustained release of capsules of anti-foaming agents. The next question, causes of pings on percussion of left abdomen in mature cattle include, these all options are correct. All of the above is the answer. Predisposing factor for selenium and vitamin E deficiency is, here third option is correct, excess of polyunsaturated fatty acid in diet. Then vitamin A deficiency can occur due to, here also third option is correct, excess of polyunsaturated fatty acid in diet. Then haggard appearance is observed in, so here third option is correct, sodium chloride deficiency. Then which is not used in the treatment of ketosis? So answer is antimony potassium tartrate. It is used in treatment of leishmaniasis. Then increase in CSF pressure is observed in vitamin A deficiency. Most specific diagnostic test for canine pancreatitis is trypsin-like immunoreactivity, fourth option. Which fluid should be given in chronic renal failure cases? So here fourth option, Heta starch is correct. Then coming to the define. So here the first define is shock. So what is shock? It is hemodynamic derangement characterized by inadequate blood flow to tissues or cells resulting in inadequate effective circulatory volume. तो क्या होता है कि जो blood flow होता है tissues का वो appropriate नहीं होता, जिसकी वजह से there is a decrease in the circulatory volume and this can result in shock. Then ascites क्या होता है? ascites ये next question था, ये abdominal swelling हो जाती है जिसमें पेरिटोनियल सैक जो होता है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था बम्बल फुट इन बर्ड्स. तो बम्बल फुट एक बैक्टीरियल या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण होता है बर्ड्स के फीट में. जनरली जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो स्टेफेलोकोकस, स्यूडोमोनास एंड ई कोलाई. ओके. देन नेक्स्ट सेप्टिसीमिया की डिफाइन पूछी थी. तो सेप्टिसीमिया क्या है? इट इज़ कंपाउंडेड diseased condition of toxemia, hyperthermia, and enormous number of infectious microorganisms such as virus, bacteria, protozoa in the blood stream. ठीक है. तो ये कंबाइन जो इफेक्ट होता है टॉक्सीमिया का, हाइपरथर्मिया प्लस इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इसे कंबाइनली बोलते हैं सेप्टिसीमिया. इक्टेरस आपको पता है जॉन्डिस. तो इसमें क्या होगा? बिलिरुबिन का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा का कलर है वो येलो हो जाता है. देन एब्डोमिनोसेंटेसिस ये कैसे परफॉर्म करते हैं? इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एक्सप्लोरेटरी पंचर ऑन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन क्लोज टू द मिड लाइन. ठीक है. और इसका जो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं इसमें देखते हैं वेदर इट इज़ अ ट्रांसयूडेट एंड एक्सयूडेट. तो ये याद रखना, जो एक्सयूडेट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस मिलेंगे, वेयर एज ट्रांसयूडेट इज डिवॉइड ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी मटीरियल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू वाइल्ड एनिमल्स ये लिखना था. तो ये सारे आप लिख सकते हो. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी. ओके. इनके ये एब्रीविएशंस भी आ जाते हैं तो आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8. सो सिंपल इनडाइजेशन के बारे में लिखना था. तो ये बेसिकली क्या है? ये डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है और साथ में जिसके साथ क्लिनिकल साइंस आते हैं इनएपिटाइट, एनोरेक्सिया, एटोनिया ऑफ र्यूमन, इनफ्रीक्वेंट डेफिकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था
प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ इक्वाइन कॉलिक। तो क्या क्या प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर हो सकता है इक्वाइन कॉलिक के? सो बाय द असेसमेंट ऑफ पेन, इंटेस्टिनल डिस्टेंशन, म्यूकस मेम्ब्रेन कलर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब देख के आप पता कर सकते हैं कि कितना सीवियर कॉलिक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था पटेलर रिफ्लेक्स। तो पटेलर रिफ्लेक्स क्या होता है? इट इज़ द किकिंग रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू अ शार्प टैप ऑन द पटेलर टेंडन। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म व्हेन एनिमल इज इन लेटरल रिकम्बेंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप। तो ये जनरली प्रेग्नेंट यूज़ में होता है जिनके मोर देन 1 फीटस होता है, एंड इट इज़ ड्यू टू द कैलोरिक डिप्राइवेशन। ठीक है, मीन्स जो कैलोरीज है वो कम होगी, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, उतना ग्लाइकोजन नहीं है, सो दिस लेड टू द प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था पाइका। पाइका ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रायोफेजिया। ठीक है, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज पाइका। इट इज़ बेसिकली कि जो एनिमल है वो एबनॉर्मल सब्सटेंसेस को खाने लगेगा। ठीक है, देन अब आते हैं हम शॉर्ट नोट पे। तो पहला शॉर्ट नोट पूछा गया था पैथोजेनेसिस ऑफ रुमिनल एसिडोसिस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो इस पूरी पैथोजेनेसिस को। सो फॉर एग्जांपल एनिमल ने बहुत सारा ग्रेन्स खा लिया या हाईली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट खा लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? माइक्रोबियल पॉपुलेशन में चेंज आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस या लैक्टोबैसिलस का नंबर बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब ये जो एक्सेस लैक्टिक एसिड है ये सारे चेंजेस करेगा। जैसे अगर ये सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया तो ये एसिडोसिस कॉज करेगा, और साथ में हेपेटाइटिस एंड हेपेटिक एब्सेस। ठीक है, अगर ये ह्यूमन पीएच, क्योंकि एसिड बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है ह्यूमन का पीएच डाउन चला जाएगा, और इसकी वजह से हिस्टामिन का लेवल भी अप जाएगा और ह्यूमन की मोटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हो सकता है कि जो ह्यूमन की ऑस्मोलैरिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन से, और अगर ये होगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा ह्यूमन में, और साथ में डिहाइड्रेशन एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन हीमो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? वो तो या तो सर्कुलेटरी फेलर कॉज हो सकता है जिसकी वजह से शॉक और एनिमल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो जो मेजर जो रीज़न होता है डेथ का वो डिहाइड्रेशन ही होता है इस केस में। देन डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ओलिगोरिया या एन्यूरिया हो सकता है। ठीक है, फिर डिक्रीज्ड पीएच फेवर्स ग्रोथ ऑफ म्यूकोर राइजोपस एप्सीडियम। ठीक है, माइकोटिक रूमिनाइटिस भी हो सकता है। देन cerebral damage, polyencephalomalacia, and chemical pneumonitis in animals which survive for 4 to 6 days। ठीक है, तो ये सारा आप समझ सकते हो ये क्या है? पैथोजेनेसिस है रुमिनल एसिडोसिस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सीक्वेली ऑफ ट्रोमेटिक परफोरेशन ऑफ द रेटिकुलर वॉल। ठीक है, अब इसमें पूछा है सीक्वली, मतलब कि आगे क्या क्या चेंजेस होंगे। सो फॉर एग्जांपल अब एनिमल ने कोई भी फॉरेन पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट इंजेस्ट कर लिया। ये आपको पता है कि रेटिकुलम का मूवमेंट होगा कंटिन्यूसली, वो होता ही है। सो ड्यू टू दिस जो शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है वो वॉल को पेनिट्रेट कर देगा। हो सकता है वहाँ पे परफोरेशन भी हो जाए, और वो लेटरल डायरेक्शन में अगर वो मूव करेगा तो स्प्लीन को, और मीडियल डायरेक्शन में मूव करेगा तो लिवर को भी वो पंचर कर सकता है। इसके अलावा अगर ह्यूमन रेटिकुलर फोल्ड में अगर जाके पेनिट्रेट करेगा तो जो ह्यूमन का जो विसरल पार्ट है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो पेरिटोनियम में भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो आसपास के जो ऑर्गन्स है, क्योंकि ह्यूमन में रेटिकुलम में कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं तो आसपास के जो ऑर्गन्स है उसको पेनिट्रेट कर सकता है। साथ में अगर पेरिटोनियम को पेनिट्रेट कर जाएगा तो पेरिटोनाइटिस होगा। द फॉरेन बॉडी मे पेनिट्रेट द ह्यूमन एंड रेटिकुलम एंटीरियरली एंड मूव फॉरवर्ड टू पेनिट्रेट द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिसकी वजह से डायफ्रामेट्रिक एब्सेस हो जाएगा। ठीक है, और जो फॉरेन बॉडी अगर रेटिकुलम को पेनिट्रेट करते हुए अगर वो पेरिकार्डियम तक चला गया तो पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो इन्फेक्शन है दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है डायफ्रामेट्रिक एब्सेस से, और क्रॉनिक लोकल पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे दूसरे ऑर्गन्स में फैलेगा तो एरिथ्राइटिस, नेफ्राइटिस, पल्मोनरी एब्सेस, निमोनिया, इन सब के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
फॉरेन बॉडी अगर रेटिकुलम में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, और वो अगर मीडियली अगर उसने मूवमेंट की तो वहाँ पे लिवर है तो हिपैटिक एब्सेस भी हो जाएगा, ठीक है। कई बार लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी का रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से एनिमल की इंटरनल हेमरेज के कारण सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा सीक्वली था ट्रॉमेटिक परफोरेशन ऑफ द रेटिकुलर वॉल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निमोनिया इन फोल्स, फोल्स का निमोनिया। तो बेसिकली यू नो कि निमोनिया क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। और कॉजेज़ क्या क्या हो जाते हैं इसके, वायरल इन्फेक्शंस के कारण हो जाता है, इक्वाइन हर्पीज वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रोडोकॉकस इक्वाइन इन्फेक्शन, पैरासिटिक माइग्रेशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जो रोडोकॉकस इक्वाई है वो एक मोस्ट सीरियस कॉज होता है निमोनिया का फोल्स में। तो इसके क्लिनिकल साइंस आप देख सकते हैं, जैसे फीवर होगा, लेथार्जिक, रैपिड ब्रीथिंग, कफ भी हो सकता है। और इसका इलाज क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, ठीक है, साथ में एनसेड्स भी दे सकते हैं। वही एक्यूट ब्रोंको इंटेस्टिनल निमोनिया भी होता है फोल्स में। ये जनरली मिक्स इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल वायरल, ठीक है। बैक्टीरिया में जनरली क्लेप्सेला, स्ट्रेप्टोकॉकस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जनरली ऑनसेट जो होता है ये हाई फीवर से होता है, इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा ही। और इसका भी ट्रीटमेंट क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन का सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैनेजमेंट ऑफ इम्पैक्टिव कॉलिक इन हॉर्सेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, एंथ्रासीन जो कि एक परगेटिव है वो हॉर्स में दे सकते हैं, डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट एट द रेट 20 to 30 ग्राम ऑरली। और परगेटिव्स दे सकते हैं जैसे जो कॉलिनोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं, नियोस्टिग्निन, एरिकोलिन, ये दे सकते हैं। परगेटिव एनिमा भी दिया जाता है विद लिक्विड पैराफिन और सॉफ्ट सोप। और इसके अलावा पैराफिन ऑयल दे सकते हैं डायरेक्टली इनटू द सीकम थ्रू लॉन्ग सीरेंज, ठीक है। स्पाज्मोलिटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स और यूज़ ऑफ क्लोरल हाइड्रेट एज सिडेटिव। और फ्लूइड थेरेपी देना तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ डेक्स्ट्रोसेलाइन टू करेक्ट डिहाइड्रेशन। तो कोई भी कॉलिक हो तो सबसे पहला जो काम होता है वो फ्लूइड थेरेपी देना होता है और एनिमल को पेन से रिलीफ पहुंचाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मिल्क फीवर इन काउज। तो काउ के जो मिल्क फीवर जो देखा जाता है उसमें 3 स्टेजेस होता है जनरली। पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, दूसरा होता है स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी और तीसरा होता है स्टेज ऑफ लैटरल रिकम्बेंसी। तो इसमें आप रीड कर सकते हैं एक एक चीज़। तो एक्साइटमेंट में हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ट्रिमर्स होंगे हेड के, लिम्स के, ठीक है। और जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा, ठीक है। और स्टर्नल रिकम्बेंसी में एनिमल स्टर्नल रिकम्बेंसी में आ जाएगा। और सब नॉर्मल टेम्परेचर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, देयर विल बी लेटरल किंक इन द नेक एंड हेड रेस्टिंग ऑन द फ्लैंक, ठीक है। हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। फिर लेटरल रिकम्बेंसी में हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और हार्ट साउंड ऑलमोस्ट इनऑडिबल होगा, ठीक है। और ये ऐसी स्टेज होती है जो बहुत क्रिटिकल होती है और इसमें 12 से 24 घंटे में डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था एजोट्यूरिया, एजोट्यूरिया इन हॉर्सेस। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है जैसे पैरालिटिक मायोग्लोबिन्यूरिया, एक्सर्शनल रैप्डोमायोलाइसिस, टाइंग अप, ठीक है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स है तो ये पता होने चाहिए, किसी भी सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एजोट्यूरिया क्या है, ये जनरली रिग्रेस एक्सरसाइज फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब रेस्ट के बाद अगर एनिमल को एक्सरसाइज कराते हैं जनरली तो ये देखा जाता है, इसलिए इसको मंडे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। इसमें स्टिफ गेट, हार्ट पेनफुल मसल्स, समटाइम्स मायोग्लोबिन्यूरिया, ये इसके क्लिनिकल साइंस हैं। कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉर्स को वेल बेडेड स्टॉल प्रोवाइड करना चाहिए, फ्रेश वाटर और ट्रैंक्विलाइज़र दे सकते हैं ताकि एनिमल को रिलीफ मिले एंजाइटी से। साथ में एनसेड्स भी दे सकते हैं और इसके साथ बैलेंस राशन देना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एनिमल रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसका जो फीड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वर्किंग कंडीशन में जो फीड दिया जाता था वैसा फीड नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। और सडन एक्सरसाइज से बचना चाहिए, एनिमल को सडन एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलर इन डॉग्स।
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन डाइट कम कर देंगे, सॉल्युबल फाइबर बढ़ा देंगे ताकि नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन बढ़ जाए, फॉस्फेट रेस्ट्रिक्शन, और रीनल हाइपर पैराथायरिडिज्म, और इसके कारण क्या हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है। ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ किडनी फेलर। देन सोडियम रेस्ट्रिक्शन करना है, डाइट को मोर पैल्पेबल बनाना है, omega-3:omega-6 का फैट एसिड रेशियो बढ़ाना है डाइट में, विटामिन डी भी दे सकते हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स भी दे सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन लास्ट शॉर्ट नोट था फ्रोथी ब्लोट इन अ बफेलो। ठीक है। तो फ्रोथी जो ब्लोट है वो एक तरीके से इसको प्राइमरी रूमिनल टिम्पनी भी कहते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर हम ग्रीन रफेज देते हैं, लेग्यूम्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, तो इसके कारण ये फ्रोथी ब्लोट होता है। ठीक है। और इससे क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें एक स्टेबल फोम का फॉर्मेशन होगा दैट ट्रैप द नॉर्मल गैसेज ऑफ फर्मेंटेशन इन द र्यूमन। जो लेफ्ट पैरालंबर फोसा है उसका डिस्टेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाई मसाज ऑफ लेफ्ट फ्लैंक, बाई एक्सरसाइज, और हम ट्रोकर कैनुला से भी गैस का रिमूवल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है। और इसके अलावा कार्बोनेटिव मिक्सचर ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल 30 to 60 ml प्लस लिंसीड स्वीट ऑयल 400 to 500 ml दे सकते हैं। एंटी फोमिंग कंपाउंड, सिलिका कंपाउंड्स लाइक ब्लॉटोसील जिसमें डायमिथाकोन सस्पेंशन होता है एट द रेट 50 to 100 ml दे सकते हैं। OTC, और रूमिनल पीएच को करेक्ट करना रहता है, और साथ में कर्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सब हम कर सकते हैं फ्रोथी ब्लोट में। अब आते हैं मेजर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इन डॉग्स। ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा पैनक्रिएटाइटिस के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है। बट आपको क्या लिखना है, जो पेपर में एग्जैक्टली पूछा गया है। अगर ईटियोलॉजी पूछी है, ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, तो ट्रीटमेंट नहीं लिखना है। ओके। पर जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है। तो पैनक्रिएटिक डिसऑर्डर्स का ये टॉपिक है। पैनक्रिएटाइटिस का मैं आपको बता देती हूँ। सो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास विच इज़ द चीफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यू नो वेरी वेल। ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैनक्रियास, जो डाइजेशन कराता है फूड का। 2 टाइप के होते हैं पैनक्रिएटाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ओबेसिटी एक मेजर रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर पैनक्रियास के अराउंड अगर फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो एंजाइम्स वो सेक्रीट करता है वो एंजाइम्स पे चेंज आएगा, एंड देयर बाय एंजाइम कॉज ऑटो डाइजेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड होगा। ठीक है। तो ओबेसिटी इसका एक कारण है। देन दूसरा कारण है बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़, क्योंकि पैनक्रियास के पास ही है बिलियरी ट्रैक्ट, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इजीली पैनक्रियास तक पहुंच जाएगा। फिर है प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी। इसके अलावा यूरेमिया, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये भी पैनक्रियास को इफेक्ट करता है। इसके अलावा इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ये सारी इसकी एटियोलॉजी है। क्लिनिकल साइंस में आप देख सकते हो कि लेथार्जी होगा, वॉमिशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, प्रेयर लाइक स्टांस। ठीक है। ब्लोटेड अपीयरेंस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, बाई क्लिनिकल साइंस कर सकते हैं। फिर एब्डोमिनल रेडियोग्राफ भी करेंगे जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द डियोडेनल लूप। ठीक है। आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगा इन रेडियोग्राफी। सो ये एक करेक्टरिस्टिक है किसका, पैनक्रिएटाइटिस का। ठीक है। फास्टिंग हाइपरलाइपेमिया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल फाइंडिंग। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें, तो इसमें ग्लैंड को रेस्ट देना, मतलब फीड इनटेक को कम करना है। ठीक है। एनिमल का वेट रिड्यूस करना है, और मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक देना ही है टू चेक एनी ऑनगोइंग इन्फेक्शन। कुछ लोग हिपैरिन भी सजेस्ट करते हैं ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो और माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ सके। ठीक है। पैनक्रियास का। देन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे करेक्ट करेंगे, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन से। ठीक है। और कुछ हम पैनक्रिएटिक एंजाइम्स भी दे सकते हैं। ठीक है। तो कुछ प्रिपरेशंस अवेलेबल है मार्केट में, तो वो भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया इन अ काउ। ठीक है। तो एस्पायरेशन निमोनिया, इसके कुछ दूसरे भी नाम है, फॉरेन बॉडी निमोनिया, गैंग्रीनस निमोनिया, इनहेलेशन निमोनिया। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक
अब कई बार फॉल्टी ड्रेंचिंग है, ये इसका एक मेजर हिस्ट्री है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हिस्ट्री अच्छे से लेनी है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, पल्स भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसके अलावा नेज़ल डिस्चार्ज, रैपिड लॉस ऑफ कंडीशन, एनिमल रिलेक्टेंट टू मूव, एविडेंस ऑफ पेन, प्रोट्रूशन ऑफ टंग, माउथ ब्रीदिंग, ठीक है। और अगर एक्सकल्टेट करने पे स्प्लैशिंग साउंड भी सुनाई देती है कई बार, या फिर मॉइस्ट बर्बलिंग रेल्स, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस बैड है इक्वाइन में, ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो नेज़ल स्वैब या नेज़ल डिस्चार्ज ले सकते हैं। बैक्टीरिया या जो भी वायरस या जो ऑर्गेनिज्म है उसका आइसोलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिलिया होगा, और अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोपीनिया, और पैरासिटिक में ईओसिनोफिलिया। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, ठीक है। और ईएसआर भी बढ़ जाता है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर वायरल इन्फेक्शन वो कर सकते हैं हम। और इसके अलावा ये बाकी टेस्ट आप देख सकते हो। फीसेस का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं पैरासिटिक ओवा के डिटर्मिनेशन के लिए, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है एनिमल को, और इसका जो टर्मिनल स्टेज होता है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलर, और एनीमिया भी देखने को मिलेगा, और हाइपरथर्मिया, एसिडोसिस, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे करेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा, एम्फीसाइमा। ओके, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिए हुए हैं, कैसे कर सकते हैं। लाइक पल्मोनरी एडिमा में कोई फीवर नहीं होगा, एम्फीसीमा में भी फीवर नहीं होगा, न्यूमोथोरेक्स में लंग्स का कोलैप्स होगा, प्लूरेसी, प्लूरेटिक रब ऑन एस्कल्टेशन, ठीक है। अपर एयरवे डिजीजेज में कफ एडवेंटिशियस साउंड्स, ठीक है। तो इसी से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इन डिजीज से कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के लिए हम कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन 20 to 40 लाख देंगे, लार्ज एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल्स में 4.8 लाख। इसके अलावा दूसरे एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, सल्फा ड्रग्स देंगे, ठीक है। और ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फाडाइजीन जो बायोट्रिम नाम से आता है मार्केट में, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ एंटीबायोटिक लाइक सेफ्टियोफर, ठीक है, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ये भी दे सकते हैं। पैरासिटिक निमोनिया अगर है तो उसमें फिर हम एंटी पैरासिटिक ड्रग्स देंगे। फंगल निमोनिया में ये सब देंगे, ग्रिसोविन, निस्टेनिन। तो ये कैसे पता चलेगा, आफ्टर वी हैव डन द कल्चर, ओके। और एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं, और स्टीरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं, ठीक है, लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, अमोनियम कार्ब इनहेलेंट एक्सपेक्टोरेंट, एनालेप्टिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और विटामिन सी और कैल्शियम थेरेपी भी दे सकते हैं टू रिजुविनेट द पल्मोनरी पैरेन्काइमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोवाइन कीटोसिस, ओके। तो आपको पता है ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है एक, तो इसकी डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड रिजल्ट फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फैटी एसिड विच लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी आपको याद रखने हैं, पोस्ट पार्चुरेंट एसिटिनेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्ट पार्चुरेंट डिस्पेप्सिया, ठीक है। फिर ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। इसके अलावा ये भी है कि देयर इज़ अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द हेपेटिक सेल लीडिंग टू बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड एसिडोसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी जब, कब कमी होगी, ये जनरली जो हाईली प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वो जब अपने पीक लैक्टेशन में होते हैं तो उनमें ये देखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो कीटोन बॉडीज़ जो बनती है कीटोसिस में, वो जनरली एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और आइसोप्रोपेनॉल, तो ये तीनों भी आपको नाम याद रखने हैं। एसीटोन, चारों नाम याद रखने हैं बिकॉज ये ओटीज़ वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज बाई एसिटोनेमिया, कीटोन्यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, लो हेपेटिक ग्लाइकोजन कंटेंट। अब है ना इटियोलॉजी की बेसिस पे इसमें 3 टाइप का डिवीजन है, 3 टाइप के होते हैं ये, एलिमेंट्री कीटोसिस, स्टार्वेशन कीटोसिस एंड
प्रोडक्शन कीटोसिस, ठीक है। और सेकेंडरी कीटोसिस जो है नाम से पता चल रहा है कि किसी और रीज़न की वजह से कीटोसिस हो रहा है, लाइक मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कीटोसिस, इसको फीडिंग कीटोसिस भी बोलते हैं, ड्यू टू एक्सेस फीडिंग ऑफ साइलेज, ठीक है। एक्सेस फीडिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी पैलेटेबिलिटी है एनिमल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एनिमल फिर फीड इनटेक कम कर देगा। और नेक्स्ट जो है स्टारवेशन कीटोसिस है। स्टारवेशन क्योंकि एनिमल को अगर प्रोटीन अच्छा नहीं मिल रहा, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा, सो ये भी एक कारण बनता है कीटोसिस का। तीसरा है प्रोडक्शन कीटोसिस, जो मैंने बताया कि जो हाई यील्डिंग एनिमल्स में होता है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। फिर है सेकेंडरी कीटोसिस, ये मैं बता चुकी। कोई और जो रीजंस होते हैं कीटोसिस के, ठीक है, सेकेंडरी रीजंस। इसके अलावा देखा जाए तो इसको ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जो हम डाइटरी इनपुट देते हैं, ग्लूकोज की प्रीकर्सर्स दे सकते हैं, प्रोपियोनेट एंड अमीनो एसिड्स। सो द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोपियोनेट एंड अमीनो एसिड ड्यूरिंग पीक लैक्टेशन, अगर पीक लैक्टेशन में प्रोपियोनेट अमीनो एसिड नहीं दे रहे हैं, सो इसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो पार्चुरेशन के फर्स्ट 2 मंथ में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फर्स्ट 21 डेज। और जो क्रॉसब्रीड कैटल और बफेलोज ये ज़्यादा प्रोन होते हैं। मेच्योर कैटल अपनी 3rd से 4th लैक्टेशन में ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। और विंटर सीजन में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उस समय एनिमल की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। पैथोजेनेसिस इसका देखें तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो और इनटेक कम है, आउटपुट ज़्यादा है, तो एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे चला जाएगा, ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एडिपोज टिश्यू का मोबिलाइजेशन होगा, सीरम में निफा का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ जो है वो लिवर में बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। फिर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखें तो दो टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। नर्वस फॉर्म 5% जनरली देखा जाता है, और जो मेजर जो देखा जाता है वो एलिमेंट्री या वेस्टिंग फॉर्म ऑफ कीटोसिस। तो जो नर्वस फॉर्म है, नाम से पता चल रहा है कि नर्वस साइंस आएंगे सारे, ठीक है। इनकोऑर्डिनेशन गेट, बिलोइंग, अग्रेशन, हेड प्रेसिंग, हाइपर एस्थीशिया। एलिमेंट्री फॉर्म में क्या होगा, फीड इनटेक जो है वो कम हो जाएगा, कैटल प्रेफर टू ईट रफ एजेस, और ड्रॉप इन मिल्क यील्ड, सडन लॉस ऑफ बॉडी वेट, वुडी अपीयरेंस, ठीक है, एसीटोन लाइक स्मेल फ्रॉम मिल्क, ठीक है। बाकी ये सब आप देख लेना उसको। उसके बाद डायग्नोसिस देखें तो क्योंकि कीटोन है, कीटोन का हमें डिटेक्शन करना है, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए रोथरा टेस्ट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे कि इसको ये सब आप देख सकते हो कि हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेजम, मेस्टाइटिस, ठीक है, इन सब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि नर्वस साइंस भी आते हैं तो हमें रेबीज से और लिस्टीरियोसिस से भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि मैं बता रही थी, इसका डायग्नोसिस रोथरा टेस्ट से तो कर ही सकते हैं, साथ में हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइंस और रीसेंट कार्विंग, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ रीसेंट कार्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोसिस करने का तरीका है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखें तो ये सारे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे। ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका आपको याद रखना है क्योंकि फिलअप्स में ओटी में पूछा जाता है कि आपको इसका अगर ट्रीटमेंट करना हो तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको 50% डीएनएस देना है। आपको जैसे ही डायग्नोस हुआ कि हाँ एनिमल को कीटोसिस है, तो आप उसको तुरंत 50% डीएनएस करीबन 500 ml आपको आईवी देना है, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। इसके बाद अगर एनिमल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो साथ में इंसुलिन भी चढ़ाना है एट द रेट 0.5 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और मतलब जो डोज है वो 200 IU इंसुलिन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ग्लूकोज थेरेपी आपको इंसुलिन की थेरेपी शुरू करनी है। फिर ऑरल सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं प्रोपियोनेट प्रीकर्सर्स का, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डोज रेट वगैरह सब लिखा हुआ है, कितना ml देना है। प्रेडनिसोलोन लार्ज एनिमल में 10 ml देते हैं, स्मॉल एनिमल में 1 ml देते हैं, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के एक्यूमुलेशन को कम करेगा। ये कुछ डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सो ये भी आप देख के जाना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू enjoyed this video. Thank you for watching.